Bismillahirrahmanirrahim. It's our third part of the series of tutorials about the triangulation and traversing. So in this series of tutorial, basically we are discussing that how a triangulation survey is carried out and what are the different types of calculation involved in the triangulation survey. So in first part of this series of tutorial, we have discussed the basic introduction of triangulation, the theodolite and the measurement of the horizontal angles, because in triangulation we are dividing the whole area into a number of triangle. Then practically we are measuring each and every angle, and one of the side of the traverse is practically measured. Then the rest of the sides, the length of the rest of the side is calculated. So in first part we have discussed the methods of the angle measurements, horizontal angles. That were the method of repetition and method of reiteration. So then we have discussed the practical measurement of the horizontal angles by method of reiteration for the given area, which is divided into a number of triangles, and we have in total we have the 42 angles. So that we call the observation angle. Then in the second part we have discussed the angle adjustment. So the angle which we observed in the field, which we measured in the field, that must be corrected or adjusted to remove any error. I mean, there is possibility of the personal error or instrumental error, or there may be some environmental error. So three types of adjustments were discussed in that second part, which is applied into the observed angle. Like the first adjustment was the station adjustment, the second adjustment was the figure adjustment, and the third adjustment was the quadrilateral adjustment. So we got the adjusted values of these 42 angles. Okay, then some of the adjusted values of the internal angles at a specific station. So we got the station angles that we call the internal angle at each and every station. Now in this third part we will discuss the practical measurement of baseline. Okay, mean all of the horizontal angle is observed and adjusted. Now we have to measure any one side of the traverse, which we call the baseline. Its length will be measured practically, then it will be corrected, and the whole circle bearing of one side of the traverse will be practically measured or observed. So and then we will discuss the baseline correction in this spot. Actually we have three types of, mostly we are applying three types of the correction: the slope correction, the pull correction, and the temperature correction. So the length and whole circle bearing of one side will be practically measured and corrected, and the rest of the side, the length and whole circle bearing of the rest of the sides will be then calculated in next part of the series of these tutorials. So again, as we have discussed in the first part of the this series of tutorials, that the whole area is divided into a number of triangle, and the horizontal angle will be practically measured, and then it will be adjusted, and any one side which qualify the requirement of the baseline, it will be practically measured, mean its length and whole circle bearing will be measured, and then the slope correction, pull correction, and temperature correction will be applied. So let's discuss that how we will measure the baseline and how these correction will be applied. So first the baseline. In triangulation, remember, the baseline is of prime importance.
Okay. Since the other side of the traverse is computed, or the other sides of the traverse is calculated, so its accuracy is depend on the proper measurement and correction of the baseline. So the baseline is generally considered is one of the average side of the traverse, and there are different requirement for the baseline, that which side should be selected as a baseline. So that side will be selected which is fairly level, or there is uniform sloping. ओके, मीन देयर विल बी नॉट टू मच अंडुलेशन, या बहुत ज़्यादा जो है उसमें डिप्रेशंस नहीं होंगे, या रिच टाइप नहीं होंगे. सो फेयरली लेवल ग्राउंड होना चाहिए, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम obstruction. Remember the side which you are selecting is a baseline for the given traverse. So उसमें उसकी दो end point जो होते हैं उसमें कोई obstruction नहीं होना चाहिए, and the ground should be firm and smooth. ओके, अप्रॉक्सीमेटली वो जो है स्मूथ सरफेस होना चाहिए, एंड द साइड शुड बी सच दैट द होल लेंथ कैन बी practically measured out, and the end point of the baseline should be enter visible. Mean there should be no obstruction, the ground will be fairly level, there will be not too much we can say that ridges या ज़्यादा undulations उसमें नहीं होंगे, ups and downs ज़्यादा नहीं होंगे, smooth surface होना चाहिए, clear surface होना चाहिए, और दोनों ends जो हैं वो enter visible होनी चाहिए. So such side will be selected as a baseline side. Okay, then different types of the baseline measuring instruments are used. So for example, we have selected one of the side from the given traverse, which is the triangulation traverse formed from the area which we have divided into a number of triangle. So for example, this is the AB line which we have selected as a baseline, so it will qualify the different requirements of the baseline. Now actually we have to practically measure the bearing of this line, the whole circle bearing. Okay, mean the angular distance of AB line with respect to the north. So the theodolite will be used, which is the most accurate instrument. Okay, इसके साथ जो है हम एक कंपास अटैच करते हैं, बिकॉज इस बेस लाइन का हमने एंगल मेजर करना है, होल सर्कल बियरिंग मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ. सो फॉर द डायरेक्शनल पर्पजेज अ ट्रप कंपास विल बी यूज्ड. सो ये जो कंपास होते हैं ये थियोडोलाइट के साथ अटैच कर देते हैं, और टेलीस्कोप को आपने इस डायरेक्शन में रखना है कि नीडल ऑफ द ट्रप कंपास जो है वो इन बिटवीन दीज टू लाइन हो. So then the telescope will be towards the north direction, और फिर उसको हम रोटेट करते हैं towards the point B, so we will get the whole circle bearing of the baseline. Similarly, during the practical measurement हम टेम्परेचर भी नोट करते हैं कि measuring temperature क्या है. So for that purposes such type of thermometers are used. Steel band, mostly the baseline is measured with the steel band, mean the whole area the whole line will be divided into a number of segment. The length of the individual segment will be less than the total length of the steel band. Okay, so in between 2 points, mean this length will be measured with the help of the steel band, and at that time the temperature will be measured. Okay, that what is the temperature during the observation. Similarly, pull will be applied at one end of the स्टील बैंड. एक इंच जो है वो इस पॉइंट पे होगा, दूसरा इंच जो है हम इस तरह एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे जो है स्टील बैंड पे पुल अप्लाई करेंगे कि प्रॉपरली उससे जो सेग है वो रिमूव हो जाए, या स्टील बैंड जो है वो ग्राउंड के साथ टच ना हो. तो पुल मेजरमेंट के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज़ होता है. ठीक है, और इन बिटवीन द 2 पॉइंट हमने एलिवेशन डिफरेंस फाइंड करना होता है कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस अलोंग द स्लोप. ठीक है, इंक्लाइन डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं, बट एक्चुअली इन सर्वे वी आर डीलिंग विद द एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सो
we have to find out the vertical difference between these 2 points. So these are the main instruments. Other supplementary instrument can also be used, like peg use होते हैं, hammers इसमें use होते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए, आपने नोट्स को, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए पेंसिल और पेपर वगैरह भी यूज़ होंगे, लेकिन ये जो है ये मेन इंस्ट्रूमेंट है. थियोडोलाइट दैट इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द बियरिंग ऑफ द लाइन. ट्रप कंपास जो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है. थर्मोमीटर विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर. and the spring balance which is used for the pull applied on the steel band, और auto level यूज़ होगा to find out the vertical difference between the 2 points जिसके बीच में जो है आप measurement कर रहे हैं, ठीक है. सो ये बेसिक apparatus है. नाउ जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर है बेसलाइन का, उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट स्टेप जो है, we have to find out the whole circle bearing of the line, and then we have to practically measure the distance. Practically we have to measure the distance between these 2 points. So इसमें जो first step है, for example this is our area which we have discussed in our first 2 tutorials. इसको हमने number of triangles में divide किया हुआ है, ठीक है, और इसमें जो हर एक एंगल है इसको हमने प्रैक्टिकली मेजर करके उसको फिर हमने एडजस्ट किया हुआ है. सो वो डेटा हमारे पास अवेलेबल है. नाउ इसमें से ये ए बी साइड जो है दैट वी हैव सेलेक्टेड इज़ अ बेस लाइन, ठीक है. तो इसको हमने बेस लाइन सेलेक्ट किया हुआ है. सो सबसे पहले इसका जो होल सर्कल बियरिंग है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ पॉइंट ए और ये जो है ये पॉइंट बी है. तो सबसे पहले क्या करना है कि स्टेशन ए के ऊपर यहाँ पे एक पेग लगा होगा और स्टेशन बी के ऊपर यहाँ पे एक पेग लगा होगा, ठीक है. तो स्टेशन ए के ऊपर थियोडोलाइट जो है वो प्रॉपरली सेट कर ले. सेटिंग का मतलब क्या होगा कि इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली सेंटर कर ले, उसको लेवल कर लें और आई पीस और ऑब्जेक्टिव पीस को प्रॉपरली फोकस कर लें. फिर हम क्या करते हैं कि थियोडोलाइट के साथ ट्रप कंपास अटैच करके थियोडोलाइट का टेलीस्कोप अलाइन कर ले नॉर्थ डायरेक्शन में. फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में हमारे पास नॉर्थ है, ठीक है. मीन ट्रप कंपास जब आप अटैच करते हैं तो थियोडोलाइट को हॉरिजॉन्टली मूव करते जाएं, ठीक है, कि ट्रप कंपास में जो नीडल है ये इन 2 लाइन की बीच में आ जाए. तो फिर थियोडोलाइट का जो टेलीस्कोप होगा दैट विल बी अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन. जो लाइन ऑफ कोलिमेशन होगा दैट विल बी अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन. नाउ टेलीस्कोप को प्रॉपरली रोटेट कर ले टुवर्ड द स्टेशन बी. स्टेशन बी के ऊपर एक ट्राइपॉड लगाएं और ट्राइपॉड के साथ जो है एक प्लम्बाब अटैच कर ले एग्जैक्टली पेग के ऊपर, ठीक है. रिमेंबर बाकी साइड्स की जो बियरिंग है वो फिर हम कैलकुलेट करते हैं. सो ये जो फर्स्ट बियरिंग है ये आपने प्रॉपरली और एक्यूरेटली ऑब्जर्व करना है. तो इसकी प्रिकॉशन ये है कि स्टेशन ए पे इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली सेंटर्ड और लेवल हो और स्टेशन बी के ऊपर प्लम्बाब जो है वो एग्जैक्टली पेग के ऊपर हो. दूसरा प्रिकॉशन ये है कि प्रॉपरली ट्रप कंपास इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच करके टेलीस्कोप को नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन कर लें और फिर प्रॉपरली उसको रोटेट कर लें टुवर्ड्स दी स्टेशन बी और अपने साथ जो है होल सर्कल बियरिंग को नोट कर लें. होल सर्कल बियरिंग इज दैट द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी लाइन विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है. सो आपके पास होल सर्कल बियरिंग ए बी लाइन का आ जाएगा. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकंड स्टेप जो है, अब हमने इस ए बी लाइन का लेंथ मेजर करना है. ए बी लाइन का हमने लेंथ मेजर करना है. सो फर्स्ट ये ए बी लाइन का जो लेंथ है दैट मे बी ग्रेटर देन दी लेंथ ऑफ द स्टील बैंड. मीन नॉर्मली स्टील बैंड जो होते हैं वो 100 फीट का होता है. तो एक गो में आप इसको मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास 500 फीट है, 600 फीट है, ठीक है, 800 फीट है, तो आपने क्या करना होगा, इस ए बी लाइन को नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड करना है, ठीक है. सो ये जो स्टेप हैं ये भी हम थियोडोलाइट के ज़रिए करते हैं.
फर्स्ट वी हैव सेट द इंस्ट्रूमेंट ओवर स्टेशन ए, उसको हमने नॉर्थ की तरफ अलाइन कर दिया, फिर हमने बी की तरफ रोटेट कर दिया, सो वी गॉट द होल सर्कल बियरिंग. नाउ यू कैन सी दैट टेडोलाइट का जो टेलीस्कोप है दैट इज टुवर्ड स्टेशन बी. ठीक है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है दैट विल बी एग्जैक्टली अलोंग द ए बी लाइन, मीन उसका जो प्रोजेक्शन होगा ग्राउंड के ऊपर वो हमारा ए बी लाइन होगा. सो टेडोलाइट का जो टेलीस्कोप है वो आप इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली हॉरिजॉन्टली क्लैंप रखें और वर्टिकली टेडोलाइट को थोड़ा सा नीचे कर लें. सो इट विल हिट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे एक पॉइंट को हिट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक पिग लगाएं. अब ये पिग कितने डिस्टेंस पे लगाना है, तो दिस डिस्टेंस शुड बी लेस देन 1 स्टील बैंड लेंथ. अगर एक स्टील बैंड का लेंथ 100 फीट है तो ये 100 फीट से कम होना चाहिए, और इस तरह होना चाहिए कि अगर इस डिस्टेंस को आप मेजर कर रहे हैं तो स्टील बैंड ग्राउंड के साथ टच ना हो. ये रिक्वायरमेंट है. ठीक है, एक पिग लगाएं. फिर टेडोलाइट की टेलीस्कोप को थोड़ा और नीचे करके यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्राउंड को हिट कर रहा है, सो यहाँ पे एक पिग लगाएं. ठीक है, एंड रिमेंबर दिस विल बी द डिस्टेंस विच विल बी लेस देन द लेंथ ऑफ द स्टील बैंड, कि उसको फिर आप प्रॉपरली आप मेजर कर सके. और स्टील बैंड जो है ग्राउंड को टच नहीं कर रहा, मीन अप्रॉक्सीमेटली आपने उसको स्टील बैंड को आप एक्सटेंड करके देखते जाएं कि ग्राउंड को टच नहीं कर रहा और लेंथ जो है वो 1 स्टील बैंड से कम है. तो इस तरह पूरा लाइन जो है उसको आप नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड कर लें. ठीक है, द लाइन विल बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सेगमेंट्स. अच्छा, नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है वी हैव टू प्रैक्टिकली मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 सेगमेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टेशन ए है, यहाँ पे पिग नंबर 1 लगा हुआ है, यहाँ पे पिग नंबर 2 है, यहाँ पे पिग नंबर 3 है, एंड सो ऑन. पिग नंबर 4, दिस इज 5, फॉर एग्जांपल दिस इज 6, दिस इज पिग नंबर 7, सपोज दिस इज पिग नंबर 8, और यहाँ पे स्टेशन बी है. सो अब क्या करना है, स्टेशन ए और पिग नंबर 1 के बीच में ये डिस्टेंस मेजर करना है, और जब आप मेजरमेंट करेंगे उसी टाइम पे टेम्परेचर नोट करना है. स्टील बैंड के ऊपर जो है पुल अप्लाई होगा और वो मेजर करना है. ठीक है, फिर पिग 1 और पिग 2 के बीच में ये डिस्टेंस मेजर कर लें अलॉन्ग विद पुल अप्लाइड एंड द टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेजरमेंट. फिर पिग नंबर 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, एंड सो ऑन. हर एक सेगमेंट को इंडिविजुअली स्टील बैंड के साथ मेजर करना है, और ड्यूरिंग द मेजरमेंट स्टील बैंड के ऊपर जो पुल अप्लाइड होगा वो नोट करना है और टेम्परेचर नोट करना है. तो इस तरह हमारे पास एक प्रोपरमा होता है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास स्टेशन ए है, तो स्टेशन ए से पिग नंबर 1 तक, फिर पिग नंबर 1 से पिग नंबर 2 तक, सिमिलरली फ्रॉम पिग नंबर 2 टू पिग नंबर 3, एंड सो ऑन. फ्रॉम पिग नंबर 3 टू 4, from fig number 4 to 5, from fig number 5 to 6, ठीक है, और 6 to 7, similarly from 7 to 8, and from pig number 8 to station B. इस तरह हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेगमेंट्स हो गए. ठीक है, तो स्टील बैंड को प्रॉपरली एक्सटेंड कर लें. उसका जो ज़ीरो एंड है वो स्टेशन ए के ऊपर होगा. ठीक है, और दूसरा एंड जो है 100 फीट वाला जो साइड है वो पिग नंबर 1 की तरफ होगा. यहाँ पे पुल अप्लाई कर ले इस एंड पे प्रॉपरली. ठीक है, और जब आप स्टील बैंड पे पुल अप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट तक जितना डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस मेजर कर ले. दैट विल बी योर मेजर्ड डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए टू पिग नंबर 1. उसी टाइम पे जो पुल अप्लाइड होगा वो आप नोट कर लें. फॉर एग्जांपल वो 20 पाउंड है, 22 पाउंड है, 25 पाउंड है, जितना भी है. ठीक है, लेकिन एक पॉइंट इसमें है कि नॉर्मली स्टील बैंड जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसी टाइम पे जो उसका स्टैंडर्ड पुल होता है वो 18 पाउंड होता है फॉर मोस्ट ऑफ दी सर्विंग बैंड्स जो हैं.
ठीक है। या हमने जो सर्वे किया हुआ है प्रैक्टिकली, उस स्टील बैंड जो है उसका स्टैंडर्ड 18 पाउंड है, तो नॉर्मली पुल जो होता है वो स्टैंडर्ड पाउंड से ज़्यादा स्टैंडर्ड पुल से ज़्यादा अप्लाई करते हैं, और उसी टाइम पे जो टेम्परेचर है वो अपने साथ नोट कर लें। सो स्टील बैंड जो नॉर्मली है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ड्यूरिंग द मेजरमेंट आपने टेम्परेचर नोट करना है। तो ये टेम्परेचर आपके पास ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में हम उसका करेक्शन डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपने उसको फिर करेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल 75 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हमारे पास वो है टेम्परेचर है, और सपोज़ आपने जो मेजरमेंट किया हुआ है बिटवीन दी स्टेशन ए एंड पेग नंबर 1, सपोज दैट इज़ 38 फीट, ठीक है। तो एक सेगमेंट आपका हो गया। फिर क्या करें, पेग नंबर 1 और पेग नंबर 2 के बीच में ये डिस्टेंस मेजर कर लें। उसी टाइम पे पुल अप्लाई होगा बैंड के ऊपर, वो नोट कर लें और टेम्परेचर नोट कर लें। फिर पेग नंबर 2 और पेग नंबर 3, पेग नंबर 3 और 4 और 5 एंड सो ऑन। एट द एंड पेग नंबर 8 और स्टेशन बी, ये डिस्टेंस मेजर करके उसका जो है आपने पुल नोट करना है और टेम्परेचर नोट करना है। तो ये तीनों कॉलम्स जो है ये आपके पास फेल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट लास्ट स्टेप जो है प्रैक्टिकल फील्ड का, वो अब इन रिस्पेक्टिव जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच में आपने वर्टिकल डिफरेंस नोट करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टेशन ए पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है वो स्टेशन बी पॉइंट है। तो एग्जैक्टली सरफेस जो होता है वो लेवल नहीं होता, उसमें माइनर अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सरफेस जो है इस तरह इसकी कंडीशन ये है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल पेग नंबर 1 लगाया हुआ था। सो नाउ सी दिस इज स्टेशन ए। तो स्टेशन ए पे जो पेग लगा हुआ है और पेग नंबर 1 जो है, पेग नंबर 1 उससे नीचे है, मीन आप ये जो डिस्टेंस प्रैक्टिकली स्टील बैंड से आपने मेजर किया है ये इंक्लाइन डिस्टेंस है, ये अलोंग द स्लोप डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में वर्टिकल डिफरेंस फाइंड करना है। सो दिस इज सिंपल, जस्ट एक साइड पे ऑटो लेवल सेट करके ए स्टेशन के ऊपर रीडिंग ले लें स्टॉप रॉड पे, और पेग नंबर 1 पे रीडिंग ले लें यहाँ से। उन दोनों रीडिंग का डिफरेंस निकालें। सो यू विल गेट द एलिवेशन डिफरेंस या द स्टॉप रीडिंग ओवर स्टेशन ए माइनस द स्टॉप रीडिंग ओवर स्टेशन बी। सो यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन दीज 2 पॉइंट, ठीक है। अब एग्जैक्टली अगर ये 2 लेवल में हो तो डिफरेंस ऑफ लेवल क्या होगा, 0 होगा, और आपने जो डिस्टेंस मेजर किया होगा वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, रिमेंबर। फिर क्या करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास पेग नंबर 2 है, तो पेग नंबर 2 पे भी रीडिंग ले लें, बिकॉज आपने जो डिस्टेंस मेजर किया होगा वो अलोंग द स्लोप होगा, वो इंक्लाइन डिस्टेंस होगा, और एक्चुअली हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। सो हर एक सेगमेंट के जो 2 पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल पेग नंबर 1 और अब पेग नंबर 2 है, उन दोनों पे आप स्टॉप रीडिंग ले लें और उनका डिफरेंस निकालें। मीन पेग नंबर 1 पे आपने रीडिंग लिया हुआ है माइनस पेग नंबर 2 पे आप रीडिंग ले लें, उनका डिफरेंस निकालें, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन दैट 2 पॉइंट। सिमिलरली पेग नंबर 2 पे आपने रीडिंग लिया हुआ है माइनस पेग नंबर 3 पे आप रीडिंग ले लें, तो उसका डिफरेंस निकालें, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ लेवल एंड सो ऑन। सो इस तरह ये जो कॉलम्स हैं ये भी आपके पास इस तरह फेल हो जाएंगे, ठीक है। सो समरी इसका ये होगा कि प्रैक्टिकली हमने बियरिंग ऑब्जर्व कर दी, फिर लाइन को हमने डिवाइड किया डिफरेंट सेगमेंट में, फिर हर एक सेगमेंट को प्रैक्टिकली मेजर कर ले विद द हेल्प ऑफ स्टील बैंड, एंड ड्यूरिंग द मेजरमेंट स्टील बैंड पे पुल अप्लाई करते हैं वो अपने साथ नोट कर लें, और जब आप मेजरमेंट लेते हैं उसी टाइम पे टेम्परेचर नोट कर लें, और फिर हर 2 पॉइंट्स के बीच में ऑटो लेवल के ज़रिए पॉइंट्स के ऊपर स्टॉप के ज़रिए रीडिंग ले लें और उनका डिफरेंस निकालें, सो दैट यू गेट द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, ठीक है। अगर वो डिफरेंस 0 हो तो उसका मतलब ये होगा कि दोनों पॉइंट्स लेवल में हैं और आपने जो डिस्टेंस मेजर किया हुआ है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और अगर दोनों पॉइंट में एलिवेशन डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो डिस्टेंस मेजर किया हुआ है वो अलोंग द स्लोप है, फिर उसको हम स्लोप करेक्शन अप्लाई करके एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है। सो दिस इज द डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड। नाउ
after this then we have to apply different types of correction. सो मोस्टली जो अप्लाइड होते हैं वो हमारे पास स्लोप करेक्शन है, पुल करेक्शन है और टेम्परेचर करेक्शन है. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन के ये क्या है. सो नॉर्मली जो स्लोप करेक्शन है दैट इज़ द सी, जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान एलिवेशन डिफरेंस है तो आपने जो डिस्टेंस मेजर किया होगा दैट विल बी अलोंग द स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स. इन सी अगर ये हमारे पास सपोज स्टेशन ए है, यहाँ पे पिग नंबर 1 है, तो एक्चुअली आपने ये डिस्टेंस मेजर किया हुआ है और हमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए इन बिटवीन दिस टू पॉइंट. सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी लेस देन दिस स्लोप डिस्टेंस. सो जो स्लोप करेक्शन होगा दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव. ये पॉइंट याद रखें, ठीक है, कि स्लोप करेक्शन जो है ये ऑलवेज नेगेटिव होता है. नाउ वी हैव मेजर्ड दिस डिस्टेंस प्रैक्टिकली बट एक्चुअली हमें ये डिस्टेंस चाहिए. सो फॉर दैट पर्पजेज वी हैव टू find out the slope correction, and the slope correction is equal to the difference between the difference of level between the 2 point square divided by 2 time of the measured length. Here you can see that कि यहाँ पे हमने हर एक सेक्शन का डिस्टेंस मेजर किया हुआ है और हर सेक्शन की जो दो एंड पॉइंट है उनके हमारे पास लेवल डिफरेंस गिवन है. सो दिस इज h और ये हमारा जो है मेजर डिस्टेंस है, ठीक है. सो फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन यू हैव टू फाइंड आउट दिस स्लोप करेक्शन, ठीक है. और ये जो स्लोप करेक्शन है ये मेजर्ड डिस्टेंस से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है. सिमिलरली देन वी हैव द पुल करेक्शन. सो एज वी हैव डिस्कस्ड के पुल करेक्शन जो स्टैंडर्ड पुल है हमारे पास वो 18 पाउंड है. नॉर्मली ड्यूरिंग द मेजरमेंट हम जो पुल अप्लाई करते हैं वो 18 पाउंड से ज़्यादा होते हैं, या 20 पाउंड होगा, 21 पाउंड होगा, 25 पाउंड होगा. सो नाउ सी अगर आप किसी स्टील बैंड के ऊपर पुल अप्लाई कर लें तो वो क्या होगा, वो एक्सटेंड होगा, अपने एक्चुअल लेंथ से एक्सटेंड होगा. तो सपोज अगर आपके पास एक 12 इंच का एक्चुअल डिस्टेंस है, आपके पास अगर 12 इंच का एक्चुअल डिस्टेंस है और इसको आप एक एक्सटेंडेड बैंड से मेजर करेंगे तो वो आपको कितना ये देगा. फॉर एग्जांपल वो आपको रीडिंग दे रहा है 11.80 इंचेस, बिकॉज स्टील जो है वो एक्सटेंडेड है, वो एक्सपेंड हुआ है. सो एक्चुअल हमारे पास 12 इंच है लेकिन स्टील बैंड जो है वो हमें 11.8 इंच दे रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा कि मेजर्ड डिस्टेंस इज लेस देन द एक्चुअल डिस्टेंस. सो फिर हमारे पास जो पुल करेक्शन आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, कि जो करेक्शन है वो आप मेजर्ड डिस्टेंस के साथ ऐड कर लें टू गेट द एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है. सो इसमें ये जो सी पी है दैट इज द पुल करेक्शन. यहाँ पे जो पी है ये हमारे पास पुल ड्यूरिंग दी मेजरमेंट जो आपने अप्लाई किया होता है वो ये है, ये 18 पाउंड से ज़्यादा होगा. मीन हर एक सेगमेंट को जब आप मेजर करते हैं इन पे हम पुल अप्लाई करते हैं तो वो कितना है वो आपने अपने साथ नोट किया होगा जो प्रीवियस टेबल है. और पी नॉट जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड पुल है, इसका जो मोस्टली वैल्यू होती है वो 18 पाउंड है. एल दैट इज़ द मेजर्ड लेंथ, मीन हर एक सेक्शन का हमने डिस्टेंस मेजर किया हुआ है ना, सो दैट इज़ द मेजर्ड लेंथ. ये क्या है, ए दैट इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील बैंड. सो हमने जो स्टील बैंड यूज़ किया हुआ है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज़ 0.004 स्क्वायर इंच, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. और ई जो है हमारे पास दैट इज़ दी इसको क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं इसको, ठीक है. मीन ई जो है दैट इज़ दी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द स्टील बैंड. सो हमने जो स्टील बैंड यूज़ किया है उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 30 into 10⁶ PSI है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है. तो इसमें
ए कांस्टेंट है विच इज़ 0.004 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील बैंड, ई जो है दैट इज़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज़ 30 इंटू 10 पावर 6 psi, पी नॉट जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड पुल है, और पी जो है दैट इज़ द मेजर्ड पुल ड्यूरिंग द मेजरमेंट, आपने जो स्टील बैंड पे पुल अप्लाई किया हुआ है, और ये एल जो है ये हमारे पास मेजर्ड लेंथ है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखें इस टेबल में हमारे पास मेजर्ड लेंथ है और अप्लाइड पुल है। तो हर एक सेक्शन के लिए आपने पुल करेक्शन फाइंड करना होगा, और पुल करेक्शन जो है वो मेजर्ड लेंथ के साथ फिर आपने ऐड करना है, सो यू विल गेट द करेक्टेड लेंथ फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ पुल। ठीक है, सिमिलरली थर्ड जो करेक्शन है दैट इज़ द टेम्परेचर करेक्शन। रिमेंबर जब आप मेजरमेंट करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है हमारे पास वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नाउ रिमेंबर ड्यूरिंग द मेजरमेंट अगर टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्टील बैंड जो है वो एक्सपेंड होता है, एक्सटेंड होता है। ठीक है, सो जिस तरह पुल करेक्शन का कंसेप्ट है वो फिर यहाँ पे अप्लाई होगा कि सपोज़ अगर एग्जैक्टली हमारे पास 12 इंच का एक्चुअल डिस्टेंस है, उसको अगर आप एक एक्सटेंडेड स्टील बैंड से मेजर करेंगे तो वो आपको मेजरमेंट कितना देगा, फॉर एग्जांपल 11.8 दे रहा है, सो द मेजर्ड डिस्टेंस इज़ लेस देन द एक्चुअल डिस्टेंस। तो इस केस में फिर टेम्परेचर करेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर जो है वो लेस देन द स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल आपके पास 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसकी वजह से स्टील बैंड क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, श्रिंक होता है। तो अगर आपके पास 12 इंच का एक्चुअल डिस्टेंस है और इसको आप एक श्रिंक स्टील बैंड से मेजर करेंगे तो पॉसिबल है वो आपको दे दे 12.3 इंच दे दे आपको। तो मेजर्ड लेंथ इस केस में क्या है, एक्चुअल से ज़्यादा है, तो इस केस में टेम्परेचर करेक्शन जो है वो सब्ट्रैक्टिव होगा। रिमेंबर स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, पुल करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट the measured pull will be greater than the standard pull, and the temperature correction will be either positive or negative. If the measured temperature is greater than the standard temperature, then the pull correction will be positive. If the measured temperature is less than the standard temperature, then the temperature correction will be negative. ठीक है, सो CT हमारे पास टेम्परेचर करेक्शन है। अल्फा जो है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, बिकॉज बैंड जो होता है मेजरिंग बैंड वो स्टील से बना होता है, सो ड्यूरिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर उसमें एक्सपेंशन भी आ सकता है और कंट्रैक्शन भी आ सकता है। सो हमने जो स्टील बैंड यूज़ किया हुआ है उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है दैट इज 6.5 इंटू 10 पावर -6 per degree Fahrenheit. This is the thermal coefficient of thermal expansion. Tm जो है that is the temperature during the measurement. T naught जो है that is the standard temperature which is 68 degree Fahrenheit per hour case. और L जो है that is the measured length. तो हर एक सेक्शन के लिए हर एक सेगमेंट के लिए हमारे पास मेजर्ड लेंथ अवेलेबल है, मेजर्ड टेम्परेचर अवेलेबल है। तो पर ईच एंड एवरी सेक्शन वी कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर। ठीक है, सो अगेन हर एक सेक्शन के लिए फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास ए स्टेशन है और पेग नंबर 1 है तो उसका हमारे पास मेजर्ड लेंथ गिवन है, पुल हमारे पास गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और एलिवेशन डिफरेंस गिवन है। ठीक है, सी elevation difference is given h, the measured temperature is given and the measured pull is given. ठीक है, ये फील्ड से आपने ये डेटा कलेक्ट किया हुआ है। नाउ इस सेक्शन के लिए बाय दिस इक्वेशन h² डिवाइड बाय 2l, ये l क्या होगा, दैट विल बी दिस मेजर्ड लेंथ, ये लेंथ हमारे पास होगा। h क्या है, दैट इज द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, सो यू विल गेट द स्लोप करेक्शन फॉर दिस सेक्शन।
तो वो यहाँ पे लिख के, सिमिलरली नेक्स्ट सेक्शन के लिए स्लोप करेक्शन फाइंड करके यहाँ पे लिख के, यहाँ पे लिख के, यहाँ पे लिख के, मीन हर एक सेक्शन के लिए स्लोप करेक्शन जो है वो फाइंड कर ले, ठीक है। सिमिलरली हर एक सेक्शन के लिए पुल करेक्शन फाइंड करना है, बिकॉज हमारे पास मजर्ड पुल गिवन है, स्टैंडर्ड पुल 18 पाउंड है, स्टैंडर्ड पुल जो है वो 18 पाउंड है, एरिया ऑफ स्टील बेंड भी गिवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन है। सो दिस इज इक्वल टू द मजर्ड पुल माइनस द स्टैंडर्ड पुल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ दिस सेक्शन, ये जो मजर्ड लेंथ है, ऑब्जर्व्ड लेंथ है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ द स्टील बैंड विच इज 0.004 स्क्वायर इंच, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज 30 × 10⁻6 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो यू विल गेट द पुल करेक्शन पर दिस सेगमेंट। हमारे केस में जो पुल है दैट इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड, सो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो हर एक सेक्शन के लिए पुल करेक्शन फाइंड कर ले इंडिविजुअली, बिकॉज हर एक सेक्शन का मेजर लेंथ हमारे पास डिफरेंट होगा, सेगमेंट जो है वो इक्वल लेंथ के नहीं होंगे, ठीक है, और पुल भी डिफरेंट हो सकता है। तो हर एक सेगमेंट के लिए इंडिविजुअली आप पुल करेक्शन का जो फैक्टर है वो फाइंड कर लें। सिमिलरली ड्यूरिंग द मेजरमेंट टेम्परेचर हमारे पास गिवन है, सो बाय दिस इक्वेशन मीन the coefficient of thermal expansion multiplied by the difference between the measured temperature and standard temperature and multiplied by the measured length. So अगर आपके पास measured temperature जो है वो standard से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर measured temperature standard से कम है तो ये नेगेटिव होगा। So again हर एक सेक्शन के लिए ये टेम्परेचर करेक्शन कैलकुलेट कर ले, ठीक है। नाउ दिस इज द मेजर्ड लेंथ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 38 है, इसका स्लोप करेक्शन सपोज हमारे पास 0.5 आ रहा है, इसका फुल करेक्शन सपोज हमारे पास 0.3 आ रहा है, और इसका जो टेम्परेचर करेक्शन है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 0.3 आ रहा है। मीन हर एक सेगमेंट का डिफरेंट स्लोप करेक्शन होगा, पुल करेक्शन होगा, टेम्परेचर करेक्शन होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर करेक्शन जो हमारा केस है उसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा था, ऑल दी सेगमेंट्स वाज मेजर्ड एट 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, सो दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। और अगर कम हो तो फिर वो निगेटिव होगा। सो नाउ 38 इज़ द मेजर्ड लेंथ, उससे 0.5 सब्ट्रैक्ट कर ले स्लोप करेक्शन, सो 37.5 हो जाएगा। पुल करेक्शन उसके साथ 8 कर ले तो 37.8 हो जाएगा। टेम्परेचर करेक्शन उसके साथ 8 कर लें तो 38.1 जो है दैट विल बी द करेक्टेड लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट, ठीक है। सिमिलरली सेकंड जो सेगमेंट है, सेकंड जो सेक्शन है उसके साथ उससे स्लोप करेक्शन सब्ट्रैक्ट कर ले, पुल करेक्शन उसके साथ 8 कर ले, टेम्परेचर करेक्शन उसके साथ 8 कर ले, यू विल गेट द करेक्टेड लेंथ ऑफ द सेकंड सेगमेंट। सिमिलरली फॉर द थर्ड सेगमेंट, फॉर द फोर्थ सेगमेंट, फिफ्थ सेगमेंट एंड सो ऑन। सो हर एक सेक्शन का हमारे पास जो 8-9 सेक्शंस थे उसके करेक्टेड लेंथ जो है वो आ जाएगा। नाउ इन सारे लेंथ को आप सम कर लें, सो यू विल गेट द टोटल करेक्टेड लेंथ ऑफ ए बी लाइन। हमारे पास जो बेस लाइन था उसका टोटल करेक्टेड लेंथ आपके पास आ जाएगा, और उसका जो है होल सर्कल बियरिंग हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्यूटोरियल कि किस तरह आप बेसलाइन को मेजर करेंगे, उसकी बियरिंग को ऑब्जर्व करेंगे और उसके लेंथ को मेजर करके उसको डिफरेंट करेक्शन अप्लाई करेंगे। सो यहाँ तक जो 3 ट्यूटोरियल्स हमारे हो गए। फर्स्ट 2 ट्यूटोरियल से हमने स्टेशन एंगल्स ऑब्टेन किए हैं कि हर एक स्टेशन के ऊपर ये जो इंटरनल एंगल्स हैं ये हमने ऑब्टेन किए हैं, और इस थर्ड ट्यूटोरियल से वी गॉट द फाइनल करेक्टेड लेंथ ऑफ द बेस लाइन बेस्ड ऑन आवर प्रैक्टिकल मेजरमेंट and based on the proper application of the correction, we got the total corrected length of this AB line is 602.5371 feet, और इसका जो bearing था that was 11.4352 grade, ठीक है। जो टेट्रालाइट हमने यूज़ किया था वो ग्रेड में था, so that is 11.4352 grade। so ये
यहाँ तक जो 3 ट्यूटोरियल्स हमारे हो गए, दीज वर बेस्ड ऑन दी प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कि फर्स्ट हमने एंगल मेजर करके उसको एडजस्ट कर दिए, फिर हमने इनसाइड एंगल्स जो है हर एक स्टेशन पे ऐड करके वी गॉट दी स्टेशन एंगल, 10 स्टेशंस के एंगल्स हमने अपटेन कर दिए, ग्रेड्स में है हमारे पास। और एक लाइन को प्रैक्टिकली उसका होल सर्कल बियरिंग हमने मेजर किया हुआ है, और एक लाइन की प्रैक्टिकल लेंथ को मेजर करके उसको करेक्ट किया हुआ है। सो दिस इज़ द प्रैक्टिकली ऑब्जर्व डेटा। ठीक है, इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल प्रोसीड विद द कैलकुलेशंस, कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन पॉइंट्स की हमने प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और ये एरिया हमने फाइंड करना है, वो हम आगे बाकी जो 3 ट्यूटोरियल हैं उसमें कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे, जो कंप्यूटेशन है वो डिस्कस करेंगे। और उसके लिए जो है गेल्स ट्रेवर्स टेबल जो है दैट इज़ यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ तक आप रिवाइज कर लें, उसको माइंड में रखें कि किस तरह हमारे पास ये स्टेशन एंगल आए हुए हैं और किस तरह हमारे पास जो है ये करेक्टेड लेंथ ऑफ बेसलाइन और होल सर्कल बियरिंग ऑफ बेसलाइन जो है ये हमने ऑब्टेन की है। ठीक है, थैंक यू।